हेलो गाइस, मैं हूँ शीतल और मैं रहती हूँ फ्रांस में। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन फ्रांस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। गाइस, तो ट्रैवल विद शांस की तरफ से आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसका बहुत टाइम से हमारे व्यूअर्स हमें कह रहे थे कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, एंड विच इज़ हाउ टू गेट अ जॉब इन फ्रांस। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और ट्राई करेंगे सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने का। तो हम फ्रांस कैसे आए, हमने कैसे अप्लाई किया और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी फ्रांस आने से पहले, और फ्रांस में हमारा सर्वाइवल कैसा जा रहा है, वी आर इंजॉइंग और वी आर सफरिंग। तो हम वो सब कुछ इस व्लॉग में बात करने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम माय हस्बैंड संदीप। हेलो गाइस, माय नेम इज़ संदीप। सो जैसा कि शीतल ने बताया, आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप फ्रांस में जॉब कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बेसिकली फ्रांस में ऑलमोस्ट मोर देन 2 years आई ऑलरेडी स्पेंड हेयर। सो मेरा जो था, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्सपीरियंस बेस्ड पे आया था कि मैंने पहले एक डोमेन जो था मेरा क्वालिटी ही था, उसमें मैं पहले से ही काम कर रहा था इंडिया में। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया था और मैं यहाँ पर बेसिकली एज क्वालिटी डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि मुझे ये जॉब कैसे मिली और मैंने क्या स्टडी की है और मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। I'm the interviewer today, so I'm going to ask you some questions from our audience side. So my first question is, how did you get this job in France? And it will be great if you describe a little about your educational background or experience in India. Okay, sure. So let's go one by one. So previously when I was working in India, so I was working for many different companies. Okay. जैसे Hero, and then there was a TDSG. So I was working with the same field which I am working in France right now. Okay. So that is like a big advantage for me to get the job here. Okay. So मेरा जो experience था वो relevant था. That is the one big plus for me. Okay. to get the job in France. So actually मैं बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहा था कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि उसको इंडिया से बाहर जाना है, थोड़ा ग्रो करना है, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आना और इंडिया में सेटल हो जाना है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा था जैसा जनरल लोग करते हैं। Okay. तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। मैंने पहले स्वीडन में भी इंटरव्यू दिया था, एक नॉर्थ होल्ड करके कंपनी है, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने काफ़ी सारे वहाँ पर ऑलमोस्ट 7 to 8 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू आई हैव attended there. Okay. But I did not get like the confirmation from them. Okay. So I was a little bit depressed and disappointed. Okay. But I was thinking like, okay, it's not the last option that I have, so I can apply for more jobs like in Europe, or even I was looking for different stuff in Canada as well. But finally I decided that okay, Europe is the place where I can go. Okay. So then finally I decided to apply something in Europe. And then how I approached this company, first I searched top 10 companies in Europe. And then I was looking for like which is most like a mature company for the battery manufacturing in Europe, because I was looking something similar what I was doing in India. Okay. So then I decided like these are the top 10 companies in Europe. And then slowly I tried to approach them. There are many ways you can approach different companies in Europe, and they are really helpful. Like if you apply to something, it's not like you just applied, they will not respond to you. Even if you are not getting selected, they will give you some feedback that you are not selected this time, and we will take your profile for further consideration in future jobs. So it's very good thing I find in Europe. Okay. Okay. Yeah, So so- they respond very well. Yeah, they were very nice. They will give you some feedback, at least you don't have like further hopes in your Okay. mind. Okay. Okay. Yeah. Okay. So this is your story. Yeah, sure. But as you told us earlier that there are many ways to apply for a job in France. Can you be a little specific, like what are the ways, how can someone apply, or how can someone approach so that they can get response as soon as possible? Okay, so I will mainly talk about two ways how to apply for the job. Okay. एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर आओ स्टूडेंट वीज़ा पे, आप यहाँ पर स्टडी करो, and then you will get internship, and then you will get permanent roles or on roll jobs, I can say, on permanent basis. So this is the first way. But the second way is you have some experience, then you can apply. That is the my, like I can say, my situation. So
if you have experience, you can apply through company website, you can apply through LinkedIn. Okay. So मेरा जो तरीका था, मैं randomly यहाँ पर LinkedIn पे ही अप्लाई कर रहा था कि काफ़ी सारी जॉब्स थी कंपनी की, जो वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। LinkedIn पे भी कंपनी की आप प्रोफाइल खोलोगे तो वहाँ जॉब का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो ऐसे मेजर तरीके हैं मैं जो कहूँगा जिससे आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हो। और द थर्ड वन इज़ आप डायरेक्टली यहाँ पर रिक्रूटर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे उसको रिक्वेस्ट भेजो एंड दे आर रियली नाइस, दे विल accept your request, and sometime they will not accept, but most of the time they will accept your request and they will try to reach out to you. Okay. So these are like the eco-friendly way where you can try to find something which you are looking for. Okay. Okay. I think this will be really helpful for the people who are really looking for a job in France or maybe in Europe. Here many people are playing football. So yeah, that's the beauty of Europe and French. They enjoy sports. They are fitness freaks. Yes. Okay, so come back to our topic. So now you're working in a French company. You are living in a French origin. So can you describe a little that what role actually French language plays? Okay, that's actually a very good question, because when we are living in a country where they used to have the different language, so for sure the language plays a really important role. So for me, अगर मैं बात करूँ कि मेरी डे टू डे लाइफ कैसी है या फिर मुझे ऑफिस में कल्चर कैसा मिलता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर यहाँ पर फ्रेंच में मूव करना चाह रहे हो तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक A1 या A2 मैं ये कहूँगा, या फिर मैं ये कहूँ कि A2 या फिर B1 लेवल तक आपको एक फ्रेंच आनी ही चाहिए, मस्ट। क्योंकि अदरवाइज आप मतलब ऑफिस वगैरह में आप देख रहे हो कि मीटिंग्स में बात चल रही है एंड दे यूज्ड टू टॉक इन फ्रेंच एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, सो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो इट्स लाइक it's really important if you are moving to France, you should learn at least the basic French when you are moving. And even आप यहाँ पर ग्रोसरी शॉप में भी जाओगे या फिर आपने भी जैसा देखा होगा कि हम डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो they also speak too much French, even they don't understand a small word of English. So for me, I would recommend, like if you are planning to move in France, so you should learn at least the basic French, and that will be a big plus for you even in your day-to-day life and even in professional life. Yes. So guys, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फ्रेंच लैंग्वेज एक्चुअली सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बट वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग आपको सिखा रहे हैं वो एक्चुअली फ्रेंच ही बोलते हैं, तो दे विल टीच यू फ्रेंच इन फ्रेंच, सो इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच। तो मैंने इसलिए फिर इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है पिल्स करके, मैंने वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस में ले रही हूँ, एंड आई थिंक दोज क्लासेस आर रियली हेल्पफुल फॉर मी। एटलीस्ट आई कैन रीड नाउ बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू having those classes. So if you are planning to come in France and if you want to learn French before coming here, you can go to that institute also. क्योंकि आप अगर इंडिया से सीख रहे हो तो आपको एक लोकल लैंग्वेज का एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये टफ होगा, क्योंकि अगर वो लोग फ्रेंच ही बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में और सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में फ्रेंच सीख पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और मैंने देखा शीतल को भी काफ़ी सारी, शीतल ने क्लासेस ली हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी हैं शीतल के पास, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी किया उन्होंने, तो आप ज़रूर इसको भी ट्राई कर सकते हो गाइज। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। Can you tell us about some mistakes that people usually do before they are moving to France, so that they can avoid to do those mistakes? Okay, so I think I would suggest 3 things that we should always avoid. First, as I already say, we need to have like the basic understanding of French language. And second, मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर मूव कर रहे हो तो आप अपनी जो एडवांस में एकोमोडेशन प्लान करके आइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपार्टमेंट वगैरह देख रहे हो या फिर होटल्स देख रहे हो या फिर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट भी चलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिजिटल है। आपको कोई भी एक बंदा नहीं मिलेगा कि आपको जस्ट एक एक्सप्लेन कर देगी प्रोसेस होटल कैसे मिलने वाला है आपको। तो आपको हर चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन ही बुक करनी है, तो बेटर यही है कि आप पहले से ही एडवांस में बुकिंग करके आइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ आकर बुक करोगे तो एक महीने की भी यहाँ पर वेटिंग रहती है, तो आपको अकोमोडेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हो। थर्ड, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो मेडिकल सर्विसेज हैं फ्रांस में, अपॉइंटमेंट थोड़ा मिलना डिफिकल्ट है, बट अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मशीनरी वगैरह जो भी है इनके पास एडवांस यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पर
अलग से कुछ ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिकली कार दे विटाल रहता है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 70% का कवरेज मिल जाएगा। 30% का प्राइवेट इंश्योरेंस अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो लोग भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको ऐसा एडिशनल इंश्योरेंस इंडिया से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये 3 चीज़ें ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप यहाँ पर फ्रांस में मूव कर रहे हो तो। ओके, सो ये तो हो गई मिस्टेक्स। सो यू हैव सम एडवाइस फॉर द पीपल हु आर वाचिंग? Yeah, for sure. Yes. So I would mainly focus on like if you are applying for a job in France, so I would suggest आपका जो CV है बेसिकली वो आप अगर फ्रेंच लैंग्वेज में बना के अगर अप्लाई करोगे तो काफ़ी इजी हो जाता है रिक्रूटर्स के लिए आपकी प्रोफाइल को देखना और अंडरस्टैंड करना, और एक उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि बंदा थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो he can survive easily. So that is the one first advice I can give our audience. Second, मैं ये कहूँगा कि ये लोग बिलीव करते हैं कि एक मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर during when you are going to apply for a job, so sometime they ask like you should provide some cover letter or motivation letter. So आपको एक अच्छा सा कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर भी बना लेना है जिसमें आप बेसिकली ये मेंशन कर सकते हो कि आप फ्रांस क्यों आना चाहते हो, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे कि फ्रांस में आप मतलब फ्रांस की ग्रोथ हो जिससे, या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, तो आपका क्या मोटिवेशन है इस जॉब के पीछे, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इसमें। एंड द लास्ट वन आई वुड सजेस्ट, इवन इफ पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, आई वुड स्टिल सजेस्ट यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट रिक्रूटर्स। सो आप जितना ज़्यादा रिक्रूटर्स को रिक्वेस्ट भेजोगे लिंक्डइन वगैरह पे, उतना आप जितना कॉन्टैक्ट करोगे आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, सो दीज आर लिटल थिंग्स विच मेक्स बिग डिफरेंस फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो ज़रूर। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट टुडे। Yeah, so I would suggest at the end, I try to cover like how to get the job, but there are many topics like what is the life here, how expensive is the life here, so that is like our separate topic. And we already post some videos on those topics, like the At cost least- of living or the basic stuff. Yeah. So you can visit our channel and see. And if you have any other query, if you want us to make some other videos on some specific topics, Just let us know, and yeah. we will Just- try our best to to make those videos. So at the end, we are about to finish for today. So I would always say like if you like our video, so like कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।